गुरु रूप साध संगत जी जो दोने अज दे साडे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट तो गैसट आए सी उन्होंने अज ये सीधे तौर पर ये सानू दस दिता है कि असी तुहाडा धर्म रजिस्टर कराने दे लई हमेशा तुहाडे नाल हाँ। अज आपां एंड दे विच जदों इत्थे समर्थ गुरु अगे अरदास करनी है तो ग्रंथी सिंह दे चरनां दे विच बेनती है कि इत्थे अज धर्म रजिस्टर की अरदास की जाएगी करमोने की धरती ते इत्थों एक वो काफला बन के चलेगा, एक मैसेज चलेगा या काफला चलेगा जिहड़ा कि उन्नी देर साह नहीं लेगा या रुकेगा नहीं जिन्नी देर सिख कौम का इटली की धरती ते धर्म रजिस्टर नहीं हो जाता। सत श्री अकाल। गुरु रूप साध संगत जी हुण जो इत्थे बाहरले देशों में रहिंदियां साडियां सरकारां जां साडे आउण दे खातर इन्हां नूं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो बाहरले देशों के विच भेजदी है, अगर अज असीं ना इत्थे होईए तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफ इंडिया नूं कोई लोड़ नहीं कि भारतीय एम्बैसियां नूं बाहरले देशों के विच कायम किया जाए, क्योंकि ये जो बाहरले देशों में असी आके पूरे भारत की धरती तो लोग वसे हाँ उन्हां दी सहायता करना जां उन्हां बारे सुनना, उन्हां दियां प्रॉब्लमां पासपोर्ट जां होर OIC कार्ड ये सारियां प्रॉब्लमां नूं सीधे तौर पर सिद्ध करना जां सहायता करना ये काउंसलर ऑफ इंडिया जो मिलान की धरती ते है इन्हां दा फर्ज बनता है। जो पहले दस्तार डे थे इसे पार्क दे विच समर्थ गुरु की हजूरी दे विच एक कौंसलर साहब संगतां नाल वादा करके गए सी कि असी सारे काम तुहाडे करांगे। अज संगतां दे सामने है जां संगतां दस दित्तियां हन कि किन्ने क परसेंट इन्हां साडे काम कीते हन। मेरी बेनती है कि कौंसलर ऑफ जनरल मिलान श्री मनीष परवाज जी वो संगतां नाल बने विचार साझे करन। श्री मनीष परवाज जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार। मुझे काफ़ी खुशी है मेरे भाइयों बहनों कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इस आयोजन में शरीक हुए हैं। आई ऑल्सो वेलकम ऑनरेबल Mario Marzitti, Member of Parliament and President of the Permanent Committee on Human Rights of Italian Parliament, that today by accepting this invitation and by being present here amidst us, actually he has conferred a great honor on us, a great honor on the Indian community and the Sikh community. Thank you very much, Mr. Member of Parliament. We always look forward to your support and we are very thankful. The government of India is sincerely thankful that it gets your attention, that you found it very useful, very important to be part of this community, you know, which is part of India, which is part of Italy. Many of them are citizens of Italy and they are peaceful citizens of Italy. Today, in my message, as the Consul General of India based in Milan, as I represent this community, as I am responsible for the welfare of this community, as you know, I'm sincerely working towards and with the big consular team in the consulate to look into each aspect and welfare of the community, their issues, their problems. We hope that we sincerely get your cooperation, your support in every aspect what we do. The Indian community, the Sikh community in Italy lives very peacefully. They have adopted this country as their homeland. They work here. By their contribution, they are also contributing towards the strength and prosperity of this country. They are very thankful for this opportunity which the Italian government has given to them, and they would like to prove themselves as very honest, very good, and very worthy citizens of Italy. In this, we thank that the Italian government has given this opportunity to them, and you know, they have you know, accepted this community with open arms, with their heart in it, actually. And for this, we really feel good that they have got this warm welcome in this country.
we sincerely hope that by their efforts between these two countries, their relations would continue to grow, and the contribution of the Indian community and the Sikh community would be, visible there. It would be very strong there. For this, today, when we celebrate this occasion there of oneness, togetherness, and the coming together of the community for a greater good of all humanity, it's not only about any one community, any one religion. It is about humanity. It is about the whole of world. It is about world peace. We are happy that in our endeavors today, we have got the support of our very honored guest from Italy. कृपया मेरे साथ जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें. We welcome. दोस्तों, ऑनरेबल मारियो मार्जित्ती आज हमारे बीच में हैं. मैंने अभी इनका स्वागत किया आपके बीच में यह कहते हुए कि इनका सहयोग जो हमें मिल रहा है वो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है. भारतीय समुदाय, सिख समुदाय जो कि इटली में रहता है, वो एक बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपना जीवन यापन यहाँ कर रहा है. और वो लोग जो यहाँ पे भारत के नागरिक हैं, कई आप में से इटली के नागरिक हैं, उन सब का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत और इटली के संबंधों को अच्छा करने में, उनको आगे बढ़ाने में. और इसमें हमें जो इटली के सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए हम आभारी हैं. और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोस्ती और ये मैत्री संबंध बढ़ते रहें और हम वो सब करें जो भारत और इटली के संबंधों को बढ़ाता रहे. ये मैंने अभी कहने की कोशिश की. दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ और भी कि बड़ी खुशी हुई देख के कि आप यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं. मुझे याद आता है कि पिछले साल अगस्त के महीने में ये प्रोग्राम हुआ था, इसी पार्क में हुआ था. मैं यहाँ पे आया था और वो मेरा पहला पब्लिक फंक्शन था. मैंने उस समय तुरंत ज्वाइन किया था यहाँ पे भारतीय कॉन्सुलेट मिलान में. आज लगभग 1 साल बाद मुझे फिर बड़ी खुशी हो रही है इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए. खासकर जो सभी गुरुद्वारों का जो इसमें सहयोग मिला है, गुरुद्वारों को क्या, सारी कम्युनिटी का जो सहयोग मिला है, आप सभी जो यहाँ पे आए हैं, आज एक ऐसा मंच मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ हम बैठ के अपनी अच्छी बातें, आपस में कम्युनिटी के जो विचार हैं वो कर रहे हैं. हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, अपने इश्यूज़ की बात कर रहे हैं. उसके अलावा हम ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जब हम एक अच्छे आयोजन में शरीक होते हैं, एक सद्गुण वाले आयोजन में शरीक होते हैं. एक बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय कम्युनिटी और जो सिख समुदाय इतने हज़ारों मीलों दूर से आके जो यहाँ पे बसा है, वो अपना कल्चर नहीं भूला है, अपनी संस्कृति नहीं भूला है. मुझे आशा है कि आप जो यहाँ पे लाखों की संख्या में रहते हैं, खासकर क्रेमोना, ब्रेशिया, मांतोआ, कई और भी ऐसे शहर हैं जहाँ पे शहर और गांव हैं जहाँ पे सिख समुदाय काफ़ी बड़ी संख्या में है. तो मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर एक कम्युनिटी को इतनी दूर आगे ले जाएंगे और कई इस तरह के कल्चरल आयोजन करेंगे ताकि कम्युनिटी अपने कल्चर को न भूले और भारत से उसके संबंध बने रहें. मुझे विशेषकर आपसे यह अनुरोध है कि जो हमारे नौजवान हैं और जो हमारे छोटे बच्चे जो इटली में पैदा हुए हैं, जो यहाँ बढ़े हुए हैं, कभी कभी भारत जाते हैं, वो अपनी भाषा न भूलें. कृपया उनके लिए पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, किसी भी भाषा का अपने गुरुद्वारों में, अपने कल्चरल कम्युनिटी सेंटर्स में उनकी क्लासेस लगवाएं. जब वो इटली में अपने स्कूलों में जाते हैं तो जाहिर है कि वो इटालियन पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, कोई और भी विदेशी भाषा पढ़ते होंगे, लेकिन पंजाबी, हिंदी, हमारी जो अन्य भाषाएं हैं वो भी ना भूलें. हमें ऐसी उम्मीद है और ये कोशिश करनी चाहिए कि ना वो केवल पढ़ें, वो उसमें लिख भी सकें. ना केवल वो लिख सकें, वो इंडिया के अखबार भी पढ़ सकें. इंटरनेट पे जो पंजाबी में न्यूज़ आती है, हिंदी में न्यूज़ आती है, वो भी पढ़ें. जब टीवी देखते हैं तो उसको समझें. इस तरह से अपने देश से और अपनी भूमि से, जो हमारी ज़मीन है, उससे संबंध बना रहता है. आप एक अच्छे इटालियन बने और एक अच्छे भारतीय बने, हम सभी यही चाहते हैं. दोस्तों, हमारे एक ऐसा देखेंगे कि जो कम्युनिटी है वो यहाँ बैठी है और कम्युनिटी के लीडर्स यहाँ बैठे हैं. काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स यहाँ बैठे हैं. मैं सबसे मिलता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि कॉन्सुलेट से कम्युनिटी के संबंध बड़े अच्छे रहें.
एक ऐसा अच्छे ताल्लुक़ होने चाहिए, इतना गहरा रिश्ता होना चाहिए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कम्युनिटी की आती है वो आपस में मिलजुल के सुलझा ली जाए। कॉन्सुलेट से हमेशा टच में रहें, उनसे हमेशा बात करते रहें। मैं कई लोगों से यहाँ पे संपर्क में हमेशा रहता हूँ। कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, खासकर जो कमेटी के जो चेयरमैन हैं, कई प्रबंधक कमेटी के जो प्रेसिडेंट्स हैं, कई लोगों को मैं यहाँ पे जानता हूँ, कई लोगों को मैं पहली बार देख रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों से ज़्यादा मुलाकात होती रहेगी, हमारे संबंध अच्छे बने रहेंगे और हम एक साथ मिलके अपने कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा लगता है, ऐसा जो कि अनुमान किया जाता है कि पूरे इटली में इस समय जो भारतीय समुदाय है, जो भारतीय कम्युनिटी है, उनकी संख्या 1.5 लाख से अधिक है। ऑफिशियल फिगर्स ऐसे हैं, ऑफिशियल फिगर जो स्टार्ट द्वारा, जो इटालियन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी है, उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो पिछली बार ऐसे फिगर्स 2011 में आए थे, उसके बाद नए फिगर्स भी आएंगे। तो ये संख्या ऐसा अनुमान की जाती है कि 1.5 लाख से ज़्यादा हमारी संख्या पहुंच चुकी है। और उसमें भी जो उत्तरी इटली है, जो नॉर्थ इटली है, इस भाग में हमारी संख्या, जो इंडियन कम्युनिटी की संख्या है, वो 1.25 लाख के आसपास है। तो इतनी बड़ी जो एक कम्युनिटी है, उसका जो योगदान है इस देश में, इस देश की इकॉनमी में, इसकी अर्थव्यवस्था में, यहाँ के काम में, यहाँ की फैक्ट्रियों में, यहाँ के खेतों में, यहाँ के डेयरी फार्म में, उसके अलावा यहाँ के ऑफिसों में, यहाँ के दफ्तर में, जब आपका अच्छा योगदान पहुँचता है तो इटली की सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो कम्युनिटी है ये काफ़ी अच्छा कर रही है, ये हमारे लिए, ये इटली को अपना चुकी है और हमारे लिए फलदायी है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा पॉजिटिव है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हाल में ही आपको याद होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है रोम में, उन्होंने इमिग्रेशन के ऊपर में जो प्रवासी लोग पूरी दुनिया से आके इटली में रह रहे हैं, उसके योगदान के ऊपर उन्होंने एक किताब स्टैटिस्टिक्स पब्लिश की थी। ब्रेशिया में उसका उन्होंने उद्घाटन भी किया था, विमोचन किया था, और उसमें खासकर इंडियन कम्युनिटी की बात हुई थी। उस किताब में जब उन्होंने स्टैटिस्टिक्स जब उन्होंने कंपाइल किए, सर्वे किया, उन्होंने पता चला, तो उन्हें पता चला कि 33% लोग जो हमारी कम्युनिटी के हैं, बिल्कुल एक तिहाई लोग खेतों में काम कर रहे हैं, 1/3 लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, और 1/3 लोग हैं जो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, मतलब कि अपनी दुकानें चलाते हैं, या किसी ऐसे अगर वो फ्रीलांसर हैं, इस तरह काम कर रहे हैं, मीडिया में हैं, ऑफिसेज में हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़ा अच्छा है। वो 1/3 सभी जगह लगे हुए हैं। इसका मतलब कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो हर फील्ड में जाता है। किसी एक फील्ड में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भारतीय कम्युनिटी के माध्यम से वो प्रॉब्लम आपके सिंधकों तक पहुंचती है, उसके आगे वो ऊपर और लोगों तक पहुंचती है, रोम में भी सरकार तक पहुंच जाती है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हमेशा वो पॉजिटिव फीडबैक जाए, एक पता चले कि तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि भारतीय कम्युनिटी को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं जब भी जाता हूँ कई शहरों में, तो जहाँ भी उनके सिंधकों से मुलाकात होती है, लोकल कम्युनिटी के, वो बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं और कहते हैं कि भारतीय कम्युनिटी हमारे यहाँ बड़े अच्छे तरीके से रह रही है, हमें बड़ा गर्व है कि वो हमारे कम्युनिटी के अच्छे सदस्य हैं। तो हम चाहते हैं कि जब आप इस तरह का आयोजन करते हैं तो एक तरह से वो भारतीय संस्कृति का भी बढ़ावा है, और ख़ासकर आप जो यहाँ पे इटालियन जो इनके पर्व त्यौहार होते हैं, जो इटालियन फेस्टा होता है, आप उसमें भी आप अच्छी तरीके से शरीक हों और एक आइडियल सिटीज़न के माध्यम से आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ वादे किए थे कि आपका काम ज़्यादा आसान करेंगे, क्योंकि कॉन्सुलर सर्विसेज में कई तरह के आपको काम पड़ते हैं। आपको मालूम है कि मिलान में कॉन्सुलेट में एक नई बिल्डिंग ले ली गई है, जहाँ पे कि काफ़ी जगह है, जहाँ पे लोग आते हैं तो अपने सर्विस के लिए बैठते हैं, उनको सुविधा होती है वहाँ पे बैठने की, टॉयलेट्स की सुविधा है, और जब वो बैठते हैं तब उनका काम होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से कि हम अच्छी से अच्छी आपको सर्विस दे सकें। आपको जब भी कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो, कृपया अपने कम्युनिटी के, अपने प्रेसिडेंट्स को, अपने गुरुद्वारे के मेंबर्स को बताएं, ताकि वो बात हम तक पहुंच सके। एक बात मैं जहां भी जाता हूं वो और भी कहता हूं और कहना चाहता हूं कि खासकर जो हमारी बहनें हैं वो कृपया काफ़ी आगे बढ़ें, कम्युनिटी के हर आयोजन में शरीक हों
और काफ़ी स्वतंत्र रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी शिकायतें आती हैं जहां नशे के तौर पे कई नौजवान अपनी महिलाओं को बुरी तरह ट्रीट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महिलाओं के साथ अगर कोई बेइंसाफ़ी होगी तो भारत सरकार, कॉन्सुलेट उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, हम बहुत कड़ा कदम लेंगे। तो कई बार हमारे पास ऐसी भी समस्याएं पहुंचती हैं। मैं कम्युनिटी और उनके लीडर से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी अपनी कम्युनिटी में ये बात पहुंचाएं कि महिलाओं की आज़ादी और उनको आगे बढ़ाना, उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और एक महिला जब आगे बढ़ती है तभी कम्युनिटी आगे बढ़ता है। तो इन शब्दों के साथ दोस्तों, दस्तार दिवस पे आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, एक प्रण करें, क्योंकि जब पगड़ी बांधना केवल एक फैशन नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट में सोच लेते हैं कि मैं पगड़ी बांध लेता हूँ। जब आप पगड़ी बांधते हैं तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, जो कि हमारे गुरु हमें कह के गए हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए, इस दुनिया में हर अच्छा काम करने के लिए, सद्गुण के साथ रहने के लिए, अच्छे विचार के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ाने के लिए जब आप पगड़ी पहनते हैं तो वो आप एक प्रण लेते हैं, एक वचन लेते हैं। मुझे आपसे विश्वास है कि इस पगड़ी की शान को आप नीचा नहीं होने देंगे। धन्यवाद। दसम पातशाह अमृत दी दात बख्शी, सानू गुरसिੱਖੀ कलगी धार बख्शी, गुरसिੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਤੁਰ ਦੀ ਪਿਛਨਾਰ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਲੈਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਜੋ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਰੋਮ ਵਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ
ਤਾਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮੋਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਓਨਰੇਬਲ ਮਾਰੀਓ ਮਾਰਸੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੇਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕ ਕੋਮੀਸੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੇਗਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਐਂਟੀ ਮਾਫੀਆ ਲਾਇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਆਫ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਓਨਰੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਬਹਾ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਰੋਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਤਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਲਈਏ। ਸਾਲ ਖੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛਿੰਕੇ ਪਰਮੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿ 4,50,000 ਈਵਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਵਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਬੋਧੀਆ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2,30,000 ਈਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਏ MP ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੋ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟੋ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MD ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਲੇਗਾ ਨੋਟ ਦੇ ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਐਂਟੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰ ਮਿਲਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਵਿਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਤ ਗਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋੜੇ ਦੀ ਪਚਨਾਰ ਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ प्रबंधकों ने लिखा सी कलयुग में कीर्तन प्रधाना कीर्तन निर्मोलक हीरा दे महावाक अनुसार कीर्तन होंगे। हुण जो बाबा मक्खन शाह लवाड़ा सिख सेंटर बोरगो के हैड ग्रंथी सरदार बलवीर सिंह जी लाल वो भी जो रोम तो आए हैं उन्होंने सिरोपा की बख्शिश सौ श्री किताब गुरु रूप साध संगत जी जो कलतूरा सिख ने अज एक किताब रिलीज की है केस ते दस्तार, ये किताब रिलीज कर रहे हैं सरदार करमजीत सिंह जी ढिल्लों, सरदार बलदेव सिंह जी बाजवा MD मीडिया पंजाब TV ते इंटरनेट ते अखबार इकबाल सिंह जी भट्टी। ये अखबार गुरुद्वारा सिंह सभा तोड़े की पचनार दी प्रबंधक कमेटी ते संगतां दे सहयोग दे नाल कलतूरा सिख है वो अज रिलीज कर रही है। वध तो वध किताब पिछे फ्री मिल रही है। लो हुण बोरगो गुरु घर दे हैड ग्रंथी यानी दिलबाग सिंह जी एक शब्द की हाजिरी लवाणगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रसना पवित्र करो प्यार सत्कार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहे